जय सुयाण तीर्थयारणम अपचिमो जय जय गुरुलोकानम जय वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं सते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाना गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रैक्टिस करता है लेकिन बॉडी प्रैक्टिस नहीं करता। Atma practices dharma, but body has no capacity or capability to practice or to do anything. It is a jad pudgal. Atma uses the body as a medium to practice religion. Then Sahib Ji explained the definition of dharma. Only gunachar is dharma. So the definition is when Atma follows its guna, then it is Atma Dharma. And when Atma does not follow the Dharma, that means it follows the Adharma, then it is opposite to its gunas, then it is Karmachar, which is where it binds more karmas. Now, then Sahib Ji explained about the Nishchayatmak Dharma and Vyavhar Dharma, which he had taken in the previous classes also, and he distinguished what is Atma Dharma, which is Gunachar, and which is following Atma's gunas. So some of the Atma's gunas can be Shanti, Saralta, Samta, Namrata, etc. And Vyavhar Dharma is when Atma applies the body to practice the Dharma, like going to the temple, doing puja, darshan, chanting beads, going to pilgrimage, etc. This is Kaya Yoga Pradhan Dharma. Then he explained very nicely, and it's really the daily routine. What should a daily routine for a Shravak be? Like, for example, he showed us in pictures getting up 4 ghadi or 2 ghadi before sunrise, that is in the Brahma Muhurat. So 2 ghadi would be 48 minutes, and then that way you get up 4 ghadi before the sunrise. So what do? First thing, write it in capital red letters. Do not get out of bed before saying Naukar mantra at all, ever. And at least minimum, each one of us should say at least 12 times we have to do Naukar mantra. Never ever sleep during Brahma Muhurat, because then if we sleep during the Brahma Muhurat, our body becomes lazy, inactive. We have tendencies to get into Alzheimer's and other health issues. So what do we do during the Brahma Muhurat? We can do meditation, do Samayik, do Kausag, do Chintan and Manan. What are the advantages? Advantages are we can have active brain, active nervous system. We will not become lazy or pramadi. Our memories will be sharp. Then second, if we have to, on the second ghadi, we get up at around 6 o'clock, do Samayik, Pratikraman. This is Atma Dharma. Then after that, between 6 and 6:30, we bow to our parents if we don't have. Very good, thank you. बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। देखिए, हम यहाँ पर जो मुख्य लक्ष्य है, आखिर धर्म क्यों करना है और धर्म के पीछे हमारा मुख्य कारण क्या है,
तो एक बात तो ये निश्चित है कि जहां हम आत्मा को, अब ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर मोक्ष मार्ग, तो ये समझ लीजिए कि अब आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे कौन बढ़ाए। ये जो है यहाँ पर एक से एक जो है, इनका नाम है गुणस्थान। जैसे जैसे आत्मा अपने गुणों का आचरण करती जाए, एक एक गुणों का स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। फॉर द स्टेप इन संस्कृत देयर इज द वर्ड यू सी गुण सोपान। ये सोपान शब्द जो है वो दैट इज द संस्कृत लैंग्वेज। सो गुण सोपान, स्टेप one by one step, each and every step having the particular type of virtues। एक एक स्थान पर आत्मा जैसे जैसे अपने गुणों को बढ़ाती है, वो क्रमशः एक एक चरण आगे बढ़ती है, एक एक सोपान उसको आगे बढ़ना है। अगर उसने गुण के स्थान पर गुण स्थान नहीं बढ़ाया और उसने अपने जीवन के अंदर दोष स्थान बढ़ाए, आप दोष स्थान अगर कहिए या फिर इसका नाम लीजिए कि ये जो है अलग से दुर्गुण अगर बढ़ जाए, अगर ये दुर्गुण बढ़ जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म छोड़ करके फिर आत्मा जो है नीचे की तरफ से उतर जाए। अब वो नीचे की तरफ से उतर जाए तो क्या होगा, ये दोष और दुर्गुण जो है, ये दोष और दुर्गुणों का आचरण जीव को बिल्कुल नीचे अधोगति में ले जाए और वहां उतार करके रख दे, पता ही नहीं चलेगा था। तो वी हैव टू चूज आइदर टू डू द गुण स्थान और टू फॉलो दोष स्थान, दुर्गुण स्थान। अब दोनों क्या है, किसके कारण कैसे है ये देखना है। तो ये जो गुण स्थान का मार्ग है, तो इसको यहाँ पर नाम दिया गया है मोक्ष मार्ग। अब मार्ग शब्द, इट इज नॉट ओनली फॉर द रोड और द वे, बट मार्ग शब्द स्पेशली फॉर धर्म। अब यहाँ पर इसको हम धर्म का नाम देंगे। जो धर्म आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे ले जाए, उसी का नाम धर्म है। बोलेंगे आप श्वेता बहन, रिपीट करेंगे। जो गुण आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाए, वो धर्म मोक्ष धर्म कहलाएगा। फिर से दोबारा आप जरा प्रीति बहन सही बोलेंगे। जो मार्ग हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है वो धर्म है। आत्मा को की दिशा में अग्रसर करे, आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे आगे लेता जाए, वो हम यहाँ पर धर्म कहेंगे, आत्मा धर्म कहेंगे। तो आप अपनी तरह से समझ जाइए, आप म्यूट करके रखिए। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं साहब। तो जैसे कि आपने सुना है 10 वैकालिक आगम शास्त्र है, 45 आगमों के अंदर सबसे पहला 10 वैकालिक आगम शास्त्र है। तो उसमें खास करके ये शब्द दिए हैं, आत्मा को संबोधन किया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावकम, वयम विजानई सोचा जम से यम तम समाय रे। हे आत्मन, आत्मा कल्याण का मार्ग भी अच्छी तरह से समझ लो और आत्मा के पतन का मार्ग भी समझ लो, पाप का मार्ग भी जान लो और कल्याण का मार्ग भी समझ लो। अब इन दोनों को अच्छी तरह से समझकर, जानकर आप अपना चिंतन मनन करके अब निर्णय करो आप कि आपको किस दिशा में जाना है, किस रास्ते जाना है। अगर आप इस दिशा में नीचे उतर जाओगे, जिसके कारण दोषाचार के कारण या दुर्गुण के कारण
अगर आप नीचे उतर गए और ये जीवन में से आपने घटा दिया तो अब क्या होगा, ये हो गया दोषा 4 हो गया, ये हो गया दुर्गुणा 4 हो गया। तो ये आपको नीचे गिराता 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 जाएगा और यहाँ आप आने के बाद एक बार ऐसी परिस्थिति में आ जाओगे कि अब आप संसार के चक्र के अंदर फिर परिभ्रमण करते रहोगे, फिर संसार के चक्र में घूमते रहोगे। अब संसार के चक्र में गए तो फिर क्या होने वाला है, आप इस गति से इस गति में, चारों गतियों में आप कहां से कहां संसार के चक्र में घूमते रहो। अब इसमें से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम निकल नहीं पाएंगे, संसार के चक्र में परिभ्रमण करते रह जाएंगे साहब। तो ये हमको कैसे भी करके, अब यहाँ धर्म मतलब क्या हो गया, सीधा तात्पर्य है दोषाचार को टालिए, दुर्गुणाचार को बंद करिए और गुणाचार में आत्मा को मस्त रखिए साहब। तो यहाँ आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप जैसे एक कदम आगे बढ़े तो एक कदम पहले आप जो है सीधे आगे बढ़ जाइए, पहले गुणस्थान से यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर ली, आपका सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, फिर एक एक कदम और आगे बढ़ते जाइए साहब, यहाँ से फिर आगे बढ़िए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अब ये आपको आगे कैसे ले जाएगा, अगर आप गुणों का आचरण करते रहते हो उससे आत्मा के कर्मों की निद्रा होती रहेगी, तो आत्मा एक एक स्टेप बरोबर गुण के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा मोक्ष मार्ग हो गया। मोक्ष का मतलब ही है कि आत्मा अब पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ रही है, आत्मा अपने गुणों को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, आत्मा कर्म क्षय करते करते आगे बढ़ रही है, एक एक गुणों को परिपक्व करके जीवन में गुणों को बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही है साहब। देखिए आपने भी देखे हैं, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, the one flower having no smell but another flower having the good smell, you see. So 2 types of flower, no doubt they are looking as the one and the same in the color. You will say this is the kamal, you will say this is gulab, no doubt, but particular type of gulab only they have the good smell, otherwise some of the flowers they have only the colors, you can attract with only the color but there is no smell. Similar like that, the men are also of the 2 types. The person, those who are doing the religious activities but there is no guna, they are not developing their own gunas in life. But some of the people, those who are doing the religious practice, they are just developing their internal virtues, the आत्म गुणों को बढ़ाते हैं, आत्मा के गुणों को विकसित करते हैं साहब। कुछ लोग जीवन में धर्म करते हैं, ऐसे डेली रूटीन, they are going to temple, they are taking the darshan, they are doing the worship, they are doing the samayik, they are chanting the navkar mantra, they are doing pratikraman samayik, but there are no gunas, the virtues in that developing in their life. उनके जीवन में गुणों का विकास नहीं हो पाता है। और आप जानते हैं सुवासित पुष्प, सुगंधी पुष्प, एक कमल, एक गुलाब यहाँ ला के रख दो, उसकी महक आपको पूरे हॉल में आती रहेगी। चंपा का फूल ला कर रख दो तो जैसे ही खुलेगा तो आपको महक सुगंध आती रहेगी। The people, those who are going for walking, you see in the garden, they are feeling that what type of good smell here of the different flowers, you see. तो वैसा है, एक व्यक्ति बाजार में निकलता है, एक आदमी इंसान बाजार में आता है, समाज में आता है, तो वो अपने गुणों की अमिट छाप छोड़ जाता है। लोग उसके गुणों की प्रशंसा करते रहते हैं, लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, सच ए नाइस जेंटलमैन, रियली ही इज द गुड जेंटलमैन पर्सन, थोरो जेंटलमैन पर्सन। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा समाज के अंदर जो है बहुत the rare people in the society,
क्यों भाई साहब, क्या हो गया? We are also the human being. They are also the human being. You have the physical structure of the body, hands and legs and head, you see. They have the same hands and legs and head, you see. No difference between both them. But the person already developed their gunas. अब वो समाज के अंदर वो गुणों से पहचाने जाते हैं। कई लोग समाज में मात्र नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन कई लोग गुणों से पहचाने जाते हैं। कई लोग नाम से पहचाने जाने के बाद जब वो नहीं रहेंगे कोई उनको याद नहीं करता है, लेकिन गुणों से पहचाने जाने वाले इंसान को मरने के बाद भी लोग याद करते हैं, मृत्यु के बाद भी लोगों को याद आता है। किसी ने आपके लिए कोई अच्छा परोपकार किया है, you will never forget him in your life। लेकिन किसी ने आपका अहित किया है, अपकार किया है, आपका नुकसान किया है साहब, तो आपको बार बार उस व्यक्ति का स्मरण आते ही मन में घृणा होगी, मन में द्वेष दुर्बुद्धि आएगी, आप उसके निमित्त कर्म बांधेंगे, आप फिजूल में राग द्वेष करते हुए कर्म बांधते जाएंगे। तो ये तो संसार में होता ही होता है। हम पहले से ही डिसीजन ले लें, पहले से जीवन में एक फाइनल डिसीजन करें, द फर्म डिटर्मिनेशन अबाउट दैट, मुझे मात्र व्यवहार से ही धर्मी नहीं बनना है, मुझे गुणों का विकास करके गुणवान बनना है। मेरा द अल्टीमेट गोल ऑफ दैट, व्हाट आई वांट टू अचीव दैट। भाई मोक्ष क्या है? मोक्ष सर्व गुण संपन्न पर्याय। आ रहा है आपको ख्याल में? मोक्ष क्या है? हम मोक्ष किसको बोलेंगे? आत्मा अपने सर्व गुणों को संपूर्ण कक्षा की पर्याय में प्राप्त कर ले, वही आत्मा का मोक्ष है। बोलो दीपक भाई, बोलशो। એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત સર્વગુણ સંપન્ન થાય એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે। ऐसे जरा सेंटेंस बनाओ, क्लियर बनाओ। चंद्रेश भाई बनाओ तो आवड़ से क्लियर सेंटेंस। मोक्ष सर्वगुण संपन्न की आत्मा की पर्याय है ये। अब संपूर्ण 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 सभी गुण तो होने चाहिए, लेकिन सभी गुण पूर्ण होने चाहिए, कोई गुण अधूरा नहीं। लेकिन उसको हम पहले यहाँ से 0 डिग्री से चालू करेंगे, तब मोक्ष तक पहुंचते पहुंचते लाख की डिग्री पर पहुंचेंगे, तब आप उसको मोक्ष कहेंगे। तो ये हम सोच रहे पहले, आपको पहले which direction you want to choose, you see this direction is of the दोष and दुर्गुण, and this direction एक रास्ता जो है, दिशा जो है, ये सबसे बड़ी बात है। Are you just walking on the road? Are you walking on the? Are you running on the road? But are you running or walking on the right direction or not? Suppose I am running, no doubt. Suppose I am walking, but if I am walking and running in the wrong direction, तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, मैं गलत दिशा में चला जाऊंगा। But if I am not running, but if I am slowly walking in the right direction, the day will come, I will achieve that। भले ही मैं धीरे चलो, न दौड़ पाऊं, लेकिन सही दिशा में चल रहा हूं, that is more important। This is not the race of hare and tortoise, you see। If you are just slowly, if you are walking, but you are in the right direction, that is much more important that आप सही दिशा में हो, ये आप समझ लो। कई श्रावक को ये कहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आखिर मैं अपने आप को पहचान रहा हूँ कि नहीं। अरे जगत में मोक्ष भी है और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय भी है, कर्म भी है, कर्म बांधने के रास्ते भी है और कर्म क्षय करने का उपाय भी है। तो ये धर्म क्या है? ये धर्म कर्म क्षय कारक शक्ति है। आत्मा अपने कर्मों का क्षय कर सकती है, इतनी प्रबल शक्ति किसमें है? धर्म में है। देखिए हम पाप कर चुके हैं, नो डाउट पाप हो चुके हैं, गलत पाप नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए, लेकिन कर चुके हैं। द पास्ट इज पास्ट, नो डाउट। लेकिन अगर पाप को याद करके हम क्षय करना चाहते हैं तो रास्ता है कि नहीं है? बच्चे ने कपड़े मैले कर दिए,
तो मम्मी उन कपड़ों को धो करके क्लीन कर देती है, साफ कर देती है साफ। तो साबुन पानी है तो कपड़े धुलते हैं। आत्मा के लिए निद्रा कारक धर्म है तो कर्मों का क्षय होता है। अगर साबुन पानी नहीं होंगे तो कपड़े नहीं धुलेंगे साहब। वैसे ही यहाँ पर है, निद्रा कारक धर्म नहीं होता तो कर्म क्षय नहीं होता। तो जो कर्म का क्षय करा दे वो धर्म है। ये पहली डेफिनेशन हमारे सामने जुड़नी चाहिए। क्या हम कर्म का क्षय कर पा रहे हैं? क्या कर्मों का क्षय हो रहा है? ये हमको प्रतिदिन की लाइफ में हमको देखना ही पड़ेगा सब, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में हमको ये समझना है कि आखिर धर्म है क्या सब। तो अब हम यहाँ पर पहले समझ रहे हैं, अब गुण है किसके साथ, पहले ये आप देखेंगे। आखिर जिसको हम यहाँ गुण के रूप में समझते हैं तो वो गुण है क्या? आप किसको गुण कहेंगे? ये सब गुण किसके हैं? आत्मा के गुण। अब आत्मा के गुण के अंदर एक खजाना जो है, अब उसका नाम है चारित्र गुण। आपने ज्ञान दर्शन दो तो देख लिया, तो समझ लिए हैं, वो है ये। लेकिन चारित्र का मतलब क्या? यहाँ पर हम चारित्र किसको कहेंगे? राहुल भाई बोलेंगे। क्षमा, दया, इन सबको चारित्र में कहेंगे। शील। बोलिए विपिन भाई, बोलिए। આત્માના ગુણનો આચરણ કરીએ આપણે એને ચારિત્ર કહીએ. हाँ, वेरी गुड। बोलो पारुल बहन क्या बताएंगे? अभी आप इतना ही समझिए, चारित्र का मतलब आचरण करना। ये मस्ट आपका व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर, योर बिहेवियर फ्रॉम योर थॉट लेवल, योर बिहेवियर इन द वॉइस लेवल, whatever you are speaking in that, and your behavior in the activities level। अब कौन से आप किस तरह से गुणों का आचरण करते हो, ये आपको देखना है साहब। अब ये चारित्राचार जिसको हम बोलते हैं, अब इन सब के अंदर इट इज चारित्र, इट इज द ग्रुप नेम। द ग्रुप नेम इन द सेंस व्हाट? There are so many type of virtues which is only of the आत्मा, सिर्फ आत्मा के ही गुण है। और ऐसे गुणों का एक समूह है, सामूहिक संज्ञा है, उसका नाम चारित्र है। तो हमको जब आवश्यकता पड़े तो इस गुण का आचरण करें, जब आवश्यकता पड़े तो इस गुण का आचरण करें। अब आपके पास समता का गुण है, नम्रता का गुण है, सरलता का गुण है, ये संतोष का गुण है, ये आपके पास क्षमा का गुण है, ये दया का गुण है, ये करुणा का गुण है, ये आपके अंदर शांति का गुण है, ये निर्विकारता का गुण है, ये आपका विनय गुण है, ये आपका विवेक का गुण है, ये ध्यान करना भी आपका ही गुण है साहब। ये निर्मलता का गुण है, निर्विकारी अवस्था का ये गुण है साहब। अब आपके अंदर ये मैत्री भाव का गुण है, प्रमोद भाव का गुण है, विश्व प्रेम का तत्व आपके अंदर भरा पड़ा हो साहब। अब ऐसे ऐसे अगर आपके अंदर कोई आप दंभ नहीं सेवन करते हैं तो ये निर्दंभ का भाव भी आपके अंदर पड़ा हुआ है। अब ऐसे ही आपके अंदर उदारता का गुण है, ये परोपकार की परायणता आपके अंदर पड़ी है सर। ये आपके अंदर भ्रातृभाव, विश्व बंधुत्व का भ्रातृभाव भी आपके अंदर भरा पड़ा हो साम। ऐसी कक्षा के अंदर का एक एक गुणों को आप अपने अंदर देखते जाइए, कितने गुण आत्मा के अंदर ये सब भरे पड़े हैं साहब। अब आप इनमें से किस गुणों का कब आचरण करते हो, कैसे कैसे गुणों का आपने कब आचरण किया कि नहीं किया साहब। आपने अपनी तरफ से सहिष्णुता बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई,
सहन शक्ति आपने कितने प्रमाण में बढ़ाई है, ये आपने निष्कषाय का भाव कितना बढ़ाया है साहब। आप अपनी तरफ से पूज्य भाव, बड़ों को रिस्पेक्ट आप कितना देते हो साहब। हर चीज को देखिए आप, हर चीज को, सब आत्मा के गुण है। और इन सब गुणों के बारे में हमें पहले तो एक लिस्ट बनाना है साहब। हर व्यक्ति को क्या करना है, आप अपनी तरफ से 108 और ज्यादा नहीं तो 108 गुण आप बढ़ा करके जो है वो अपनी तरफ से आपके कमरे के वॉल पर लिखिए और फिर रोज पेंसिल से राइट करिए, आज मैंने इसमें से किन गुणों का आचरण किया है, आज मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में किस गुणों को जीवन में उतारा है। आप डे टू डे लाइफ के अंदर यू कैन मेक योर पर्सनल डायरी। इन पर्सनल डायरी यू कैन make as a timetable, daily schedule wise, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and write down all the 108 गुना। आज आपने अगर अपनी तरफ से और कुछ नहीं, चलो भाई मौन तो रखा है, आपने कितना मौन रखा है पहले इतना, तो आप उधर राइट करिए। आपने मौन रखा उसमें राइट किया, आपने विनय गुण रखा है उसमें अगर आपने राइट किया, मैंने आज समता रखी है, मैंने आज जो है शांति रखी है, मैंने आज अपनी तरफ से दया का पालन किया है, मैंने अच्छी करुणा के भाव रखे हैं साहब। अब मैं अपनी तरफ से किन गुणों का आचरण करूं, इधर देखिए आप, इसके अंदर इन्हीं गुणों के अंदर आपके मॉरल्स भी आ जाएंगे, एथिक्स भी आ जाएंगे, सब है इसके अंदर, आत्मा के गुण है ना। आप इधर पहले देखिए, एक भी गुण आत्मा का नहीं है ऐसा कौन सा बता सकते हैं आप? जस्ट थिंक फॉर 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए, विचार कर लो, मीनाबेन लागे छे તમને એમાંથી કયો ગુણ આત્માનું નથી એવું? બધા ગુણો આપણે સંપન્ન કરવાના છે। अब इसमें से ये सब गुण आता है, इधर देखिए आप, अब जिन गुणों के अनुरूप आप आचरण करोगे वो गुण आपका बढ़ेगा, जिन गुणों से विपरीत आचरण करोगे उस गुण के ऊपर आवरणीय कर्म आकर के लग जाएगा। अब आपने मान अहंकार किया साहब, ये मान अभिमान किया, तो ये आपका गुण आपका ढक गया। ढक गया मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कर्म का आवरण चढ़ गया, डबल लेयर ऑफ द कार्मिक लेयर। अब ये कर्म बन गया साहब। अब क्या होगा समझे, आपने सरलता नहीं रखी, ये आपका गुण गया, अब यहाँ माया आ गई। आपने संतोष नहीं रखा, ये लोभ इसमें आपका बढ़ गया। अब आप एक एक को देखते जाइए डे टू डे लाइफ में, तो हमारे पास ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया सर। आप अच्छी तरह से कोई ड्राइंग बना लो, ऑल कलर्स डिफरेंट कलर दे करके गुणों के नाम लिख दो, और फिर एक दूसरा चित्र बना लो, उसके ऊपर बिल्कुल कवर करके लेयर बना करके आप कर्म का आवरण। अब डे टू डे लाइफ में दोनों देखिए सर, इधर राइट करना है, उधर रॉन्ग करना है, उधर राइट करना है, इधर रॉन्ग करना है, आप कर सकते हो। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ हो गया सर। और जब इस प्रैक्टिस के अंदर आप आ जाएंगे तो एक हमारी आत्मा पर संस्कार बनते हैं। अब वो संस्कार जब बनेंगे, एक यू बिकम एज ए हैबिचुअल विद दैट, मारे रोज गुणનું આચરણ કરવાનું છે। હું કેમ ભૂલી जाऊं છું, मैं क्यों भूल रहा हूँ, मेरे में गुण पड़े हैं, ये सब में पड़े हैं। ये भगवान महावीर क्या कह रहे हैं कि ये सब गुण सबके सत्ता में ऑलरेडी स्टोर है। सत्तागत गुण इसको बोलते हैं, सब में पड़े हैं, लेकिन कभी हमने गुण का आचरण नहीं किया और कभी हमने गुण से विपरीत आचरण किया है, दोष दुर्गुण का आचरण किया है, तो फिर तो कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे। आत्मा कर्म कब बांधती है? आत्मा अपने गुणों से विरुद्ध विपरीत आचरण करती है तभी कर्म बांधती है, नहीं तो नहीं बांधती है।
बोलो कांति भी बोलसो। चलो बोलिए नरेंद्र भाई बोलो। अपने गुणों के विपरीत आचरण करे तो कर्म बांधता है। बस अब इसको पॉजिटिव सीधा बोलिए। आत्मा जब अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे तो कर्म की निद्रा होती है, आत्मा के गुण बढ़ते हैं। और आत्मा जब अपने गुणों से विपरीत विरुद्ध आचरण करेगी तो नए कर्म बनते जाएंगे, गुण और रखते जाएंगे। बस बात तो इतनी सी है, मेन बात पर ध्यान दीजिए। ये डेफिनेशन बना करके रखिए, अब ये लिख करके रखिए आप अपनी तरफ से, तो क्या होगा कि हमारा अपना रोज का जो है लक्ष्य इस पर क्लियर हो जाएगा। मुझे करना क्या है आखिर? अब मैं नमो अरिहंताणम का जप करता हूं तो मेरी नम्रता का गुण बढ़ता है अंदर से, और मेरी नम्रता के गुण के ऊपर जो मान कसाय का आवरण है वो घटता है। इसलिए आपको किया है, कहा गया कि नहीं, पहले उठते ही आप पहले नम्रता के गुण का स्मरण करते हुए पंच परमेश्वरी को नमस्कार करिए। If it is possible for you to count 108 navkar in the bed when you are awaking first time, if you have not that much time, then minimum for the 12 navkars, कम से कम 12 नवकार गिनने की स्थिरता और शांति बनी तो रहनी चाहिए। कभी मैं नवकार का बताऊंगा, कभी लोकस्य का बताऊंगा। अभी लोकस्य से आप नींद में से उठते ही पहले 24 तीर्थंकरों को वंदना कैसे करते हो? ये आत्मा का गुण है। वंदना किससे हो रही है? विनय गुण के आचरण से वंदना हो रही है, वो हमारा विनयाचार है। आपको ये भी ख्याल आना चाहिए। पाय चित्तम विनौ भयावच्चम तैव सज्जाओ। विनयाचार भी आभ्यंतर तप के अंदर निद्रा कराने वाला कर्मक्षय कारक धर्म है। अभी आप देखिए, आप यहाँ जिन प्रवचन, जिन वाणी है ना, तो आप प्रवचन शुरू करने के पहले वंदना करते। ये नहीं कि खाली एक ही जन वंदना करे, आप सभी कर रहे हो साहब। तो यहाँ जिससे ज्ञान ले रहे हैं तो गुरु वंदना हम करें, तो ये भी हमारा 2 मिनट का वंदना करने का आचरण भी हमारा कर्म क्षय कर रहा है, निद्रा कारक धर्म है। अगर अविनयाचार हम कर रहे हैं तो कर्म का बंध होगा, दोष का आचरण होगा तो कर्म का बंध होगा। ये आत्मा के साथ डायरेक्ट है, बिल्कुल इजीली जुड़ा हुआ भाव है। एवरी मोमेंट है, किसी को दूसरे को आपका कुछ भी अकाउंट रखना नहीं है। कोई दूसरा क्यों आपका अकाउंट रखेगा? इन्होंने क्या किया, इन्होंने सही किया, इन्होंने गलत किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसा, कोई किसी को कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद रखिए, और यहाँ रहता ही है, गुण तो सभी अंदर है। अब इन गुणों के ऊपर आप क्या कर रहे हो? अगर गुणों से विपरीत दोषाचार, दुर्गुणाचार आचरण कर रहे हो तो कर्म आते जाएंगे, फिर कर्मों से आत्मा फिर ढकती जाएगी। ये आपने कर्म का आचरण जो है विपरीत किया, ये गुण ढक गया। ये आपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं किया, उनके इंसल्ट के, ये कर्म बन गया। सब क्या तकलीफ है? ये हमारे माँ बाप है। हम सुबह उठते ही पहले माँ बाप को नमस्कार करें, हम माँ बाप की चरण वंदना करें, नमन करें साहब। ये आपका रिस्पेक्ट देने का कर्तव्य है। माँ बाप ने, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, इस संसार में लाया है, उनका बहुत बड़ा उपकार है। तो क्या गलत है? आपके विनयाचार से, आपकी नम्रता से माता पिता ही दुनिया में कैसे हैं कि सहज आशीर्वाद निकलते रहते हैं। अपने संतान के प्रति शुभेच्छा सद्भाव से उनके अंतर से आशीर्वाद जरूर निकलेंगे। अब दुनिया के देवी देवता तो आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष माँ बाप तो सामने ही है ना। आप चरण वंदना करेंगे, नमस्कार करके आप करते ही आपको उनके अंतर से शुभ भाव प्रकट होंगे, बरोबर आशीर्वाद देंगे। आप सहज भाव में निकलता है, आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है। हम मांगने जावे कि हमको आशीर्वाद दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मांगे बिना सहज मिलता है।
वो अपने आप सहज भाव से बोलेंगे। आपके विनय गुण को देखते उनके अंतरात्मा में से प्रकट होता है, ये विशेषता है। अब सब गुण को देखिए ना, सबको देखना है, एक ही गुण देखना है ऐसा नहीं है। आप जिस गुण का आचरण कर रहे हो ये धीरे धीरे हमारा एक चार्ट बन जाएगा, प्रतिदिन के लाइफ का एक चार्ट बनना चाहिए और हमारी पर्सनल डायरी बननी चाहिए। हम रोज कम से कम एक बार कम से डायरी खोलकर देखें तो सही, क्या किया है मैंने। ये है परोपकार का। आज मैंने किसी का परोपकार का काम किया है कि नहीं किया है, किसी का दुख दूर करने में मैंने सहयोग किया कि नहीं किया साथ, किसी की अशांति चिंता घटाने में मैंने थोड़ा साथ दिया कि नहीं दिया साथ। कहीं ना कहीं तो आप देंगे ना, किसी न किसी जगह पर तो आपको जाकर के करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर कर्म कहाँ बनाएगा, नुकसान किसका होने वाला है, मेरा ही होने वाला है। मैं अगर यहाँ पर सहिष्णु नहीं बना, मैंने अच्छी तरह से सहन नहीं किया, मेरा क्या नुकसान है भाई साहब। सहन करने में मेरा कुछ जाता नहीं है, बाकी के सब सहन हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के शब्द ही सहन नहीं हो रहे हैं आपको तो ज्यादा नुकसान होगा, फिर अंदर क्लेश का साय बढ़ता जाएगा, फिर आगे द्वेष बढ़ते जाएंगे। अब हमको इतना ऊंचा कीमती धर्म मिल गया है, अब किसके साथ राग द्वेष की गांठें बांधकर किस भाव में साथ में कहाँ ले जानी है। हम समझदार हैं हम। जैन व्यक्ति जो होता है कि ऐसा ऊंचा धर्म मिलने के बाद खुद इतना समझदार बनता है कि वो नए कर्म बांधना नहीं चाहता है और नए कर्म बांध करके साथ में लेकर नेक्स्ट लाइफ में जाना नहीं चाहता है। मुझे नेक्स्ट भाव में ये कर्म साथ में नहीं ले जाने, मैं बेटर है कि यही मेरे कर्म का क्षय कर दूं, मैं बेटर है कि इन्हीं के साथ अपना जीवन गुजार करके अपने कर्म का फल भोग लूं, बाकी मुझे वापस आगे नहीं ले जाना, नहीं तो भव बढ़ जाएंगे सब। धर्म भव बढ़ाने वाला नहीं है, धर्म भव घटाने वाला है। भावी भव घटाने वाला काम करता है, कर्म क्षय करने का काम धर्म का है। नए भव बढ़ाने से तो फायदा ही नहीं है, ऐसा धर्म नहीं चाहिए हमको। तो ये धर्म कैसा मिला है आपको, ये धर्म कैसा मिला है। जाई जरा मरण शोक पनासन स कल्याण बुखल विशाल सुहाव स को देव दानव नरेंद्र गण धम्मस्य सार उपलब्ध करे। ऐसे उत्तम धर्म का सार प्राप्त करके कौन प्रमाद करेगा भाई साहब। जन्म जरा मरण का नाश करने वाला है, भव संसार घटाने वाला है, शोक का भी नाश करता है धर्म। और ये धर्म आपके आत्मा का विकास करने वाला है, आत्मा को मोक्ष मार्ग पर आगे ले जाने वाला धर्म मिला है। बहुत कीमती धर्म मिला है, बहुत कीमती। हमने इसकी कीमत नहीं की, हमने इस धर्म की कदर नहीं की सर। जब एक तरफ मनुष्य जन्म और फिर ऊपर धर्म, अभी आप उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र भी सुन ही रहे हो, तो उसमें तीसरे अध्ययन के अंदर ये बात आई, चत्तारी परमंगाणी दुर्लहानी हजंतुनो मानुसत्तम सुरी श्रद्धा संजम वीर्यम। पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही अति दुर्लभ, और उच्च गोत्र में, उच्च कुल में, उच्च धर्म में ऐसा मनुष्य जन्म मिल जाए तो धर्म का श्रवण होना बहुत दुर्लभ है। और अगर मान लो धर्म का श्रवण हो रहा है तो धर्म की श्रद्धा तो अतिशय दुर्लभ बताई। और अगर आपको धर्म की श्रद्धा भी हो जाती है तो आगे आगे के एक एक स्टेप को लीजिए। अब आपको ये ख्याल आएगा कि किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है। नंबर 1 यहाँ पर जो है क्या बताया, चत्तारी दुर्लभ।
चत्तारी का मीनिंग है चार वस्तु जो परम दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्य का जन्म। अब आप एक स्टेप आगे बढ़िए। मनुष्य का जन्म अगर आपको इतना दुर्लभ मिल गया तो नंबर 2 पर धर्म का श्रवण। अभी सबसे पहले धर्म का श्रवण होना, धर्म सुनना, धर्म की बात समझना बहुत दुर्लभ है। और थर्ड स्टेज पर आप आगे बढ़ेंगे तो इतना सुन करके अब आपको श्रद्धा हो जाए, सम्यक दर्शन की श्रद्धा आपको हो जाए तो ये और इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। ऐसा बहुत डिफिकल्ट। अब श्रद्धा हो जाए तो अब आगे चल करके ऐसा आचरण आप कर सको, और आचरण में भी इतना प्रबल पुरुषार्थ कर सको कि कर्म का क्षय, बहुत दुर्लभ है। अब देख लो आप, यहाँ संसार के अंदर लोग पहले मनुष्य जन्म पा गए, जैन बन गए तो धर्म सुनने ही नहीं आ रहे थे। नंबर 2 के अंदर धर्म का श्रवण कर लेते हैं तो आगे श्रद्धा ही नहीं हो रही और नीचे गिर जाते हैं साहब। मान लो श्रद्धा हो गई तो वो आचरण ही नहीं कर रहे थे। अब आचरण करने लग गए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2%, 3%, 5%, मुश्किल से थोड़ा थोड़ा बहुत बाहर धर्म कर लिया, बहुत हो गया, हमने तो बहुत कर लिया, हमने बहुत कर लिया। ऐसा मत करिए सर, ऐसा मत सोचिए। धर्म श्रवण करने के लिए, अब धर्म प्राप्त करने के लिए ये बात है। जरा आप सभी को जो है उत्तराधीन सूत्र भेज रहे हैं, यहाँ पर रोज की रिकॉर्डिंग YouTube पर मिल रहे हैं, क्योंकि वो लाइव नहीं चल रहा है, इसलिए आप जो भी चाहो आप अपनी तरफ से, मैं थोड़ा थोड़ा एसेंस दे रहा हूँ और तो कोई ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ पूरा, लेकिन ये हमको समझना तो बहुत जरूरी है, सुनना तो बहुत जरूरी है। अब ये सब आत्मा के गुण हैं। अब देखिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ माता जी, कम से कम 108 गुणों का लिस्ट तो बना लीजिए आप। साहब जी बनाया हुआ है मैंने, आपने पहले बनवाया था तब मैंने बनाया हुआ है। अब आगे सबको रिक्वेस्ट है धीरे धीरे खुद सोचिए, नहीं तो ये तो माता जी बहुत उदार दिल के अभी सबको भेज देंगे, लेकिन एक वीक मत भेजिए आप किसी को, लेट देम थिंक ओवर इट फर्स्ट। 1 सप्ताह तक लोगों को खुद को होमवर्क करने दो, खुद पहले थोड़ा सा दिमाग चलाने दो और लोग लिखेंगे अपनी तरफ से, फिर बाद में नेक्स्ट वीक जो है ये आप सबको लिस्ट भेज देना। सब बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ। तो ये अब आप पहले सोचिए, अब आप डिसीजन करो मुझे मेरी लाइफ में कौन कौन से गुण डेवलप करने हैं, मुझे मेरी लाइफ में कौन कौन से गुण और बढ़ाने हैं, मैंने कितने परसेंटेज बढ़ाए कि नहीं। अब सबके ऊपर परसेंटेज लिखिए, फिर आपको पता चलेगा किस पर कैसा कर्म है, किस पर कितना कर्म है, किस पर कैसा कर्म है। आप एक एक कर्मों को पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे, तब आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। तो मैंने तो एक थोड़ी सी हल्की सी झलक आपको दी है, छोटे से थोड़े से गुणों को आपके सामने रखा है। लेकिन विजय भाई यहाँ पर महावीर स्वामी तो कह रहे हैं अनंत चारित्र है, ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, चारित्र भी अनंत है, वीर्य भी अनंत है। तो अनंत का मतलब 3 अर्थ में अनंत शब्द देखिए, एक एक गुण करके संख्या में भी अनंत है, एक एक गुण का प्रमाण लीजिए तो वो भी अनंत है, और तीसरा कालिक अर्थ कराता हूं कि एक एक गुण अनंत काल तक आत्मा में रहने वाला है। बोलिए मेहता जी, बोलेंगे आप तीनों बोले। हमने अनंत का 3 अर्थ किया है, एक अनंत गुण संख्या में भी अनंत है, दूसरा आपने क्या कहा, तीसरा कालिक अनंत कहा था, बीच वाला अनंत गुण हमेशा के लिए अनंत, वो कालिक हो गया, और संख्या में अनंत है वो पहला अनंत हो गया, बीच वाला अनंत याद नहीं निकल गया। प्रमाण 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 भी अनंत है, क्या लगेगा, एक एक गुण का प्रमाण भी अनंत है ऐसा। तो ये सभी गुण है। अभी आप देखा समता,
आत्मा में कितनी क्षमता पड़ी है? अनंत पड़ी है। सहन शक्ति कितनी पड़ी है साहब? अनंत पड़ी है। संगम देव के एक रात में 20 उपसर्गों के सामने महावीर ने कितना सहन किया, कितनी सहन शक्ति रखी, कितना सहन करते करते कर्मों की निद्रा की, ये तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जब महावीर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे हम मंदिर तो जाते ही इसीलिए हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं तो पूजा करते हैं, तो दिस इज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट। क्यों कर रहे हैं हम? हे भगवान, जो आपके अंदर गुण है वही मेरे में है, जो आपके अंदर जितने अनंत हैं उतने सब मेरे में सत्ता में पड़े हुए हैं, सब अनंत है। हे भगवान, आपने इन गुणों के ऊपर के आवरणीय कर्म का क्षय कर दिया, इसलिए आप भगवान बन गए। मैंने अभी तक इन गुणों के ऊपर के आवरणीय कर्मों का क्षय नहीं किया है, मैं अभी तक भगवान नहीं बन पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक संतोष है, मैं आपको पाने की दिशा में ही चल रहा हूँ। My direction is really perfect, no doubt it is there. I am in the right direction. मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। एक दिन जरूर आएगा कि मैं भी आपकी कक्षा प्राप्त करूंगा। कब करूंगा? सभी गुण पूर्ण हो जाएंगे तो मैं भी एक दिन आपके जैसा बन जाऊंगा। Because time is very limited, see, क्योंकि वापस साहेब આપણા ગુણ 108 હોય તો કર્મ બી એટલા જ હોય કે વધારે હોય? अरे माझी अनंत छे 108, तो मैं एक सैंपल दे रहा हूँ आपको छोटा सा, ख्याल है? लेकिन आप तो गुण है तो कर्म, एक एक गुण पर कर्म आएगा, सब गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म आएगा, तो हर एक गुण का कर्म बन गया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में यही लेंगे ना, कैसे कर्म बन रहे गुणों का, तो पहले आपको इधर ही ख्याल आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ગુણો છે એનું જ સ્મરણ ન હોય તો એની નિજરા કેવી રીતે થાય? અનંત ગુણો છે તો આપણને તો 25-50 ગુણો બી ખબર નથી. अपन एक बीजाમાં સંકળાયેલા છે કાકા, जस्ट लाइक द चेन। एक सोने की चैन है तो एक कड़ी दूसरी में, दूसरी कड़ी तीसरे में, चौथी कड़ी में, तो धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाएगा ना, समझ आ जाएगी। आप करो ना, लिस्ट करना कोशिश तो करिए। इफ यू विल ट्राई योरसेल्फ, आप देखेंगे 50-100 गुण तो आप कल लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास आते आते तब तो आप 100-108 लिख लेंगे खुद ही, और नहीं लिखेंगे तो ये माता जी भेज देंगे आपको। फिर उन गुणों का आप अपना टाइम टेबल बना लो, आप डेली शेड्यूल बना लो, चार्ट बना लो। चार्ट बना करके रोज उसको जो है एक बार मेमोराइज करते जाओगे। अरे ये तो मेरी आत्मा का गुण है, आज तो अच्छा मौका था कि मैं मौन रख लेता तो बच जाता था। मैं खाली लिफ्ट में उतर रहा था तो एक भाई साहब के साथ झगड़ा, तो मैंने भी सोचा क्या फालतू बात थी, कोई काम की बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट लेना ही नहीं था। मैं मौन रख करके सुधा, 2 मिनट का तो काम था, लिफ्ट में उतरने का टाइम लगता कितना है, क्यों बोलूं मैं? कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड खूब बहुत आनंद होएगा आपको, और फिर कोई टेंशन चिंता की बात ही नहीं रहेगी आपके लिए, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। बताइए बंदा महाराज जी, महाराज निदम्ब गुण कौन सा हुआ जी? आपने निदम्ब भी लिखा हुआ है जी। दंभ नहीं, निर्दंभ। दंभ तो कर्म है ना, आप दंभ दिखाओगे, दंभ करोगे आर्टिफिशियल, वो तो कर्म बनता है। निर्दंभ आत्मा का गुण होता है। आप दंभी रहेंगे नहीं, दंभ करेंगे नहीं, समझे? मध्यम वंदामी साहब जी गुण का आचरण नहीं करेंगे तब भी कर्म बंधेंगे। गुण का आचरण नहीं करेंगे तो ऐसे भी कर्म बना रहेगा, कर्म क्षय नहीं होगा। और गुण से विपरीत आचरण करोगे तब कर्म का बंध होगा। अभी आपको दया रखनी है, दया नहीं पाली और आप क्रूरता कर रहे था तो कर्म बंध होगा ना। गुण से विपरीत आचरण कर्म बंध आएगा, और गुण का आचरण करने से कर्म क्षय होगा, कर्म निद्रा होगी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। साहिब जी, जैसे आपने कहा कि आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है, तो क्या परमात्मा ने उन अनंत गुणों का वर्णन किया है कहीं किसी आगम में? हमें आगम से मतलब नहीं है, भगवान ने जिस तरह से जो वर्णन किया कि आत्मा के गुण, अब काल कितना बीत गया,
अनंत भूतकाल बीत गया, अनंत भूतकाल में अनंत आत्मा ने कब किस समय कौन सा गुण प्रकट किया, कब कौन सा गुण प्रकट किया है, सोचिए समझे कि नहीं। तो वो तो सब जगह पर आप खुद अपनी तरह से विकसित करके ये मत सोचे कि आगम में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा अनंत का, ऐसा नहीं। आप जो सोच रहे हैं वो तरीका ही है। नहीं, अनंत को का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से मैंने पूछा। जी हाँ, समझ गए। इसलिए तो अनंत के 3 अर्थ दे दिए, आपको ख्याल आ जाएगा। देखो इतना अनंत का लिस्ट मिलने वाला नहीं है ऐसे। जी मथेड़ा ना हमारा साहब, सब ये गुण और अवगुण तब होते हैं जब हम मनुष्य के अपने व्यक्तिगत इंसानों से कुछ बातचीत हो जाती है या छेड़खानी हो जाती है या कुछ वार्तालाप में कुछ दोष लग जाते हैं, तो पता नहीं लगता है कि अभी इनका सॉल्यूशन हम वो बात का निराकरण नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। उसकी बात हमें समझ नहीं आ रही है और हमको समझा रहे हैं कि भाई ये बात तुम्हारी गलत है, तो उसमें और पाप बन जाते हैं। तो हम बोलना बंद करेंगे, मौन रखेंगे, तो बात वो कहेंगे कि हाँ देखो आपने जो किया वो गलत था, मैं सच्चा था। लेकिन उनको हम क्लियर कैसे करें कि भाई तुम्हारी ये गलती है, ये गलती को तुम सॉल्व करो तो ये प्रॉब्लम हम दोनों का मिट जाए और हम दोनों शांत में रहें, प्रभु भक्ति में रहें, साथ में मिलकर खाएं पिए, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम मनुष्य जो संसारी जीव है, हम उसको तो ये प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि ये गुण हम सब हैं और हम ले रहे हैं, लेकिन जब उनका निराकरण करते हैं बातों से किसी के साथ तो उल्टी गाड़ी चढ़ जाती है, तो उसमें और पाप बंधन होता है और आवरण आ जाता है। ये कैसे सॉल्व करें? जरूर है, जहाँ जरूरी है वहां मौन रखो। आपको जहाँ लग रहा है कि मुझे कर्म बंद होगा वहां तो मौन रखो। जहाँ आपको लग रहा है कि क्लैरिफिकेशन देना है तो दीजिए। आपको लग रहा है कि भाई मेरा यहाँ क्लैरिफिकेशन करने से ज्यादा फायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई मौके कई निमित्त आते हैं कि जहाँ मौन रखने में फायदा, तो वहां पर आपके पास मौन रखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप रोज मौन रखते 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 धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ेगी, तब आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कभी किस गुण का, कभी कुछ गुण का, कभी किस गुण का, जरूरी है ना। नहीं, लेकिन सामने की व्यक्ति जो होती है उसका भी आचरण ऐसा हो जाता है कि लिमिट के बाहर हो जाता है, तब ये इतना प्रश्न बड़ा हो जाता है और उसमें और दुर्घटना और कष्ट क्रोध बढ़ जाते हैं इंसानों के। तो इसमें आजकल विश्व में देखो तो लड़ाइयाँ होती है। क्या करना चाहिए था? गौशाले के सामने महावीर स्वामी को क्या करना चाहिए था? संगम एक रात में 20 उत्सर्ग कर रहा है तो महावीर स्वामी को क्या करना चाहिए था? चंड कौशिक के सामने महावीर स्वामी को क्या करना चाहिए था? फिर महावीर कर्म बांधते तो क्या होता? महावीर ने आज निर्णय कर लिया है, महावीर ने आप अपनी तरफ से फाइनल डिसीजन कर लिया, मुझे अब नए कर्म बांधने नहीं है, मुझे भव बढ़ाना नहीं है, मुझे तो इसी भव में कर्म क्षय करके मुक्त में जाना ही जाना है। तो वो अपनी तरफ से निष्क्रिय है, अब एक भी कर्म बढ़ाना नहीं चाहते। नहीं तो क्या फर्क पड़ता था? चंड कौशिक सांप आया, महावीर एक पैर दबा देते, 1 सेकंड में चंड कौशिक खेल खत्म हो जाता। लेकिन वो करने जाने में फिर एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती और कर्म बंद हो जाता, तो महावीर को फिर मुश्किल हो जाता। अब वैसा नहीं करना है। वही फर्क जो लगता है चौथे आरे में और 5वें आरे में और छठा आरा तो इससे भी बुरा है। तो देखिए अब आराओं का विचार करने जाएंगे तो हम कभी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। आराओं का ये कालिक विचार इट इज कॉमन फॉर ऑल, पूरी दुनिया के लिए, आपके मेरे लिए, अकेले के लिए 5वां आरा नहीं है। आज भी मैं अगर चाहूं तो मैं 5वें आरे में चौथे आरे जैसा जीवन जी सकता हूं। आत्मा के लिए, इन गुणों के लिए आराम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साहब। काल तो काल का काम करेगा, आरा आरा के स्थान पर है, और मुझे तो इन काल से भी बचकर आत्मा के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। मैं आत्मलक्षी बन जाऊं पहले, तो हम अगली क्लास में फिर सीखेंगे, आगे आएगा। चलो अभी दूसरी क्लास भी शुरू करनी है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम।
नमो वच्छायानं नमो लोये सर्वसाधनं एषु पञ्चनमुद्धारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम सावलोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणां जयति शास्त्रम्